ओके तो स्टूडेंट्स देखो, अब आज के लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें Fe टू प्लस I माइनस I2 एंड PT यू आर गिवन. Okay, now see, for the writing Nernst equation you must write anodic, cathodic and then a total reaction. Okay, so first of all we are writing anodic reaction. So anodic reaction will be Fe solid gives Fe2 plus 2 electrons, and cathodic reaction will be I2 plus 2 electrons gives 2I minus. Physical state, standard physical state of iodine is solid. Okay, and now in a total reaction, here both of the ions are at product side. Okay, and E0 cell will be E0Z of cathode minus that of anode. Chala. Cathodic reduction potential is iodine 0.54 minus 0.44, so total is 8 and 9, 0.98 volt, right? And now in Nernst equation the formula is E cell equals E0 cell minus 0.059 divided by 2. That will be the number of electrons which are transferred. Okay, and then logarithm of, see, the formula of formula is concentration of product upon that of reactant. तो यहाँ पे दोनों आयंस प्रोडक्ट साइड पे ही है, देख लो. So at that time in Nernst equation we are considering only the concentration of ions, और जिसके जितने मोल वो हम एज अ पावर लिखते हैं. Here both of the ions are at product side, that's why both of the ionic terms will be at numerator, and denominator there is no ion, so we will write 1. So that's the funda and this must be known for you. तो नर्न्स इक्वेशन में यहाँ पे दोनों टर्म्स प्रोडक्ट साइड है, तो फिर हम वो वहीं पे लिखेंगे. अभी तक आपने जो 20 न्यूमेरिकल्स किए प्रीवियस सेशन में मैंने दिए थे, तो वो जो हमने 20 न्यूमेरिकल्स किए, तो वो सब न्यूमेरिकल्स में एक फंडामेंटल था, क्या पता है, कि एनोड अपॉन कैथोड. तो आपके दिमाग में भी छप गया होगा, एनोड अपॉन कैथोड. तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, बट फॉर the cell reaction in which negative ions are considered, so in this reaction Nernst equation is quite different. That's why we have written into the formula that E cell equals E0 cell minus 0.059 by 2 logarithm of concentration of product upon reactant. मतलब एरो के बाद की जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट, और जो आगे की टर्म्स है वो रिएक्टेंट, और सिर्फ आयंस हम कंसीडर करते हैं. ओके, तो चलो ये यहाँ पे आपको नया सीखने को मिला. नेक्स्ट, अब E0 सेल 0.98 माइनस 0.0295 लॉगेरिथम ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 उसका स्क्वायर. तो ये होगा 0.64 इंटू 0.5 मीन्स 0.32, और 0.32 का लॉगेरिथम माइनस 0.4948 and then 0.0295 multiplied by 0.4948, 0.0146 we can write, 0.0146.
चलो टोटल 4 टर्म्स है ना, तो 46.9946 वॉट, दिस इज द आंसर. Okay students, next. So in this question, anodic reaction will be I minus gives half I2 plus electron. Okay, and in cathodic reaction Au has 3 plus charge, that's why 3 electrons are added into it to get 1 mole of Au. Okay, and now in a total reaction electrons must be same, that's why this reaction is multiplied by 3. Okay, now in a total reaction Au3 plus ion plus 3 minus ion, which gives 3 by 2 I2 plus Au solid. And the next one is E0 cell equals E0 ray of cathode minus that of anode. Chalo, E0 ray of cathode is plus 1.4. okay, here is oxidation potential, so it is inverted, and minus reduction potential of anode, and that is 0.54. okay, and minus my 1.4, it is I2I minus 0.54. so by subsection we are getting how much? 0.4 and then 14.86 volt, right? And now in Nernst equation, here both of the ions are at reactant side, that's why Nernst equation is E cell equals E0 cell minus 0.059 upon N. First you have to write the terms only. Both of the ions are at reactant side, so both of the terms will be at denominator. And now E0 cell 0.86 minus 0.059 upon N is 3, logarithm of 1 upon, chalo, Au3 plus 0.4 and cube of 0.03. चलो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ कितना आएगा? 0.4 multiplied by 0.03, जस्ट मिनट ऐसा ही करना है. चलो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03. It is 92592.6. 92592.6. अब इसका लॉगरिथम देखना है. नाइन टू फाइव नाइन टू 0.6, उसका लॉगरिथम होगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.9665, 4.9666. okay, and then 0.059 multiplied by 4.9666 divided by 3. It is 0.0977. And then finally 0.86
minus 0.0977. It is 0.7623. Okay, so this is the question. Next, okay, next question is PT Cl2 Cl minus, then F minus F2 and PT. Here concentration is 0.8 molar and 0.4 molar. Okay, the values given to you: Cl2 Cl minus 1.36, F2 F minus 2.87. Okay, next, चलो एनोडिक रिएक्शन क्या होगी? तो Cl माइनस एक्वियस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोडिक रिएक्शन में हाफ F2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1F माइनस. टोटल Cl minus aqueous plus 1/2 F2 gas gives half Cl2 gas plus F minus aqueous. Okay, and then E0 cell will be reduction potential of cathode 2.87 minus 1.36. So it is 1, 5 and then 1.51 volt, right? Just a minute. Yes, and now in Nernst equation, E cell equals E0 cell minus 0.059 upon 1 logarithm of, only ions are considered. It is at product side there is F minus and at reactant side there is Cl minus. तो चलो E0 cell कितना 1.51 minus 0.059 logarithm of 0.4 divided by 0.8. Okay, so it is 1/2. Log 1 is 0 minus log 2 is 0.3010. Okay, and in multiplication, 0.059 multiplied by 0.3010, it is 0.017759, मतलब 0.01776. Okay, तो 76 as it is, 776 as it is, 1.52, 776. Okay, this is the answer. Almost we can write 1.53 volt. तो स्टूडेंट्स अभी हमने टोटल 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए. ध्यान से देख लो, 4 टाइप्स के टोटल हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं. ध्यान से देखना. हाँ, जो चारों टाइप्स थे ना, इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न हमको दिखी गई. कौन सी? देख लो. सी, इफ यू आर गिवन द पॉजिटिव साइड्स एट बोथ ऑफ द साइड्स, देन लॉगरिथम क्या आएगा? एनोड अपॉन कैथोड आएगा, जो आपने 20 न्यूमेरिकल्स किए. अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो आएगा एनोड और कैथोड दोनों न्यूमरेटर में. अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आएगा लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन एनोड इंटू कैथोड. पावर अपनी तरह से आएगा. ओके, वो तो
जिसके जितने मोल्स है वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड फाइनली अगर दोनों साइड नेगेटिव हो तो फिर आएगा कैथोड अपॉन एनोड। ओके, चलो प्रूफ के साथ देखते हैं। देख लो यहाँ पे Sn2 प्लस और Au3 प्लस, तो Sn2 प्लस इज एनोड, तो यहाँ पे देखो एनोड अपन क्या थोड़ा है। यहाँ पे देख लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों टर्म्स कहाँ पे आई, न्यूमरेटर में। अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 अपॉन आया, देख लो। ओके, एंड फाइनली अगर दोनों नेगेटिव आयंस हैं तो आया F माइनस अपॉन Cl माइनस, देख लो कैथोड अपॉन एनोड। तो वही समरी हम मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो मतलब ये स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन इससे हम अगर ये आपको याद रखना हो तो ये याद रखो, या तो फिर मैंने जो सिखाया कंपलसरी सेल रिएक्शन मस्ट बी रिटर्न, और सेल रिएक्शन के हिसाब से जाओ। तो ये जस्ट मैंने अभी तक का जो करवाया ना, ये इसका कंक्लूजन है। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो वर्कशीट आपको भेजी थी उसमें से 21 से अब स्टार्ट करना है। यहाँ पे 21 से स्टार्ट करके 35 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो इतने क्वेश्चंस अभी आप कंप्लीट कर दो, 21 to 35। लास्ट जो 5 सम्स है ना, 31 to 35, वो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। ओके, उसका फंडामेंटल नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, लेकिन उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे तो फंडामेंटल उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, चलो अभी आगे एक टर्म है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी, इन दिस टर्म if we write the Nernst equation, E cell equals E0 cell minus 0.059 upon n logarithm of concentration of product upon that of reactant, पता है ना ये फॉर्मूला। Now in this term, this product upon reactant, it can be written Kc, where Kc is equilibrium constant. So equilibrium constant can be calculated when the cell reaction is in equilibrium, और जब cell reaction equilibrium state पे होती है तो उस टाइम पे E cell 0 होता है। ओके, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग टू वैल्यूज, E cell की जगह पे 0 लिखो और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह पे Kc लिखो, तो यहाँ पे आएगा E cell is 0 equals E0 cell minus 0.059 divided by n logarithm of Kc। अब देखो ये पूरी टर्म नेगेटिव है। Now it goes to another side, so we are writing 0.059 upon n logarithm of Kc equals E0 cell। इजी, एंड देन log Kc को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, log of Kc equals E0 cell into n upon 0.059। okay, so that Kc equals anti-log of E0 cell into n upon 0.059। so this is the final formula, so this formula must be known। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दी है, देख लो, Kc equals anti-log of E0 cell into n upon 0.059। अब देखो, suppose you are given one reaction is 2Fe3 plus Sn reversibly gives 2Fe2 plus
plus SN2 plus. You are given two values E0 Fe3 plus slash Fe2 plus. इसकी वैल्यू है 0.77 वॉल्ट और E0 SN2 plus SN is minus 0.14 वोल्ट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे SN वो कन्वर्ट हो रहा है SN2 प्लस में, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, दैट मीन्स दिस विल बी एनोड, एंड Fe3 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, सी +3 to +2, +3 से +2 हो रहा है ना, तो रिडक्शन मीन्स कैथोड. तो जब हम E0 सेल कैलकुलेट करें ना, तो वो हम वैल्यू देख के नहीं करेंगे. वैसे तो यहाँ पे एनोड और कैथोड अपनी तरह से बराबर ही है, लेकिन समटाइम्स यू विल बी गिवन द रिवर्स रिएक्शन. ओके, तो एनोड और कैथोड ऑलवेज इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द सेल रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या होगी, सॉरी E0 सेल क्या होगा, E0Z ऑफ कैथोड माइनस E0Z ऑफ एनोड. तो E0Z ऑफ कैथोड, तो वो हुआ यहाँ पे 0.77 माइनस -0.40, कितना हुआ टोटल, 0.91 वोल्ट. ओके, एंड यू आर आस्क्ड Kc, तो Kc का फॉर्मूला है एंटीलॉग ऑफ E0 सेल इंटू N डिवाइडेड बाय 0.059. तो E0 सेल 0.91, चलो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना आया 2 और 0.059 एंटीलॉग. (0.91 multiplied by 0.91 multiplied by 2 divided by 0.059, 30.8474. ओके, बराबर है ना, 30.8474. अब जब इसका एंटीलॉग देखेंगे तो 0.84 का 7 में 4 और 10⁻30. (7.038 into 10⁻30), 7.038. ओके, तो ये है अपना Kc. तो चलो Kc की वैल्यू मिल गई. ओके, तो अब होमवर्क में चलो और कितने क्वेश्चन आ गए, टिल 50 तक. ओके, शायद यहाँ पे किसी पोटेंशियल में गड़बड़ी हो सकती है, तो आप प्लीज़ बुक रिफ़र कर देना एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में जो दिए है उस हिसाब से. तो टोटल हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में फ्रॉम 21 to 50. ओके, तो इतने क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का लेक्चर चलो इसी के साथ कंप्लीट हुआ. ये वर्क अच्छी तरह से कंप्लीट करो, आगे का अगर कुछ भी बाकी है तो अच्छी तरह से रिवाइज करो और ये कंप्लीट करो. गुड बाय.